I am Dr. Meenu Jain, Associate Professor and Head Department of Economics, DAB College for Girls, Yamnanagar. Today the topic is perfect competition, a market structure. In this lecture, I will introduce you to perfect competition, characteristics of this competition, difference between pure and perfect competition, firm as a price taker, not a price maker, role of time element in the determination of price, market price versus normal price, short-run equilibrium of a firm with total approach. First, we will do what is a market. A market is that mechanism by which buyers and sellers are bought together. It is not necessarily a fixed place. बाजार किसे कहा जाता है? ये कोई एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होती. बाजार एक मैकेनिज्म है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों मिलते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं. तो मिलने के लिए एक फिक्स प्लेस की जरूरत नहीं होती, कोई मैकेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन पे आप शॉपिंग करते हो, दैट इज अ मार्केट इन इकोनॉमिक्स. तो मार्केट जो है सिर्फ नॉट प्लेस, सेक्टर 17, वो मार्केट से कॉमन लैंग्वेज में मार्केट्स हैं, बट इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या है? एक मैकेनिज्म है. कई तरह की मार्केट्स हो सकती हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली and imperfect competition. What is perfect competition? Perfect competition, a hypothetical market structure. ये इमेजिनरी मार्केट स्ट्रक्चर है जो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है. तो हम इसे क्यों पढ़ते हैं? Studying this market structure is useful as it serves at a basis to evaluate efficiencies in the real world. रियल वर्ल्ड में जो मार्केट्स पाई जाती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनकी एफिशिएंसीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द थ्योरी ऑफ प्राइसिंग. कीमत सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है. New classical economists claim that perfect competition would produce the best possible economic outcomes for the individual as well as for the society. New classical economists कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है. Some markets that come very close to perfect competition, such as raw agriculture products, although products differ in terms of their quality. आपको मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रियल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है. फिर भी अगर हम सोचें कि उसके पास में, उस बाजार के पास कौन सी मार्केट्स आ सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए तो रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहा जा सकता है. ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डिफर करती है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है. Now, definition of perfect competition. According to Professor Vilas, the perfect competition is characterized by the presence of many firms. They all sell identical products. The seller is a price taker, not a price maker. Perfect competition में क्या होता है? बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो कौन से प्रोडक्ट को बेचती हैं? सेम प्रोडक्ट को बेचा जाता है और जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है. नाउ characteristics of perfect competition: large number of buyers and sellers, homogeneous products, freedom of entry and exit of firms, one price,
perfect knowledge, perfect mobility, firm a price taker, normal profits in the long run, independent decision making, no selling cost, and no transportation cost. First feature is large number of buyers and sellers. There are large number of buyers and sellers of a product in a perfectly competitive market. Each buyer and seller is so small compared to the entire market that he cannot influence the price and quantity of the product brought or sold by him. तो फर्स्ट फीचर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स का नंबर बहुत अधिक होता है. एक सेलर और एक बायर पूरी मार्केट की तुलना में बहुत छोटा होता है. वो वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट नहीं आता तो वो इतना छोटा है कि क्लास पे उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता. तो अगर एक बायर डिमांड नहीं करेगा तो मार्केट में बहुत जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम नहीं होगी. और अगर एक सेलर क्वांटिटी को सेल नहीं करेगा तो भी सप्लाई जो है वो सप्लाई इतनी कम नहीं होती कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए. तो एक बायर और सेलर में इतनी पावर नहीं होती कि वो प्राइस और क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर पाए. सेकेंड फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सारे कैसे होते हैं? सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आप भी पेंसिल को सेल कर रहे हो, मैं भी पेंसिल को बेच रही हूं, तो हम दोनों की पेंसिल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. तो फर्म्स, अलग अलग फर्म्स जो क्वांटिटी को बेच रही हैं, उनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता. The product of one firm is a perfect substitute for another firm's product. तो जो बायर है वो तुम्हारी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई पेंसिल भी खरीद सकता है और मेरी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई पेंसिल को भी बाय कर सकता है. सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. नेक्स्ट फीचर 1, प्राइस. देयर इज अ यूनिफॉर्म प्राइस डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री. तो मार्केट में एक ही प्राइस होती है और वो प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री के द्वारा वो प्राइस जो है डिसाइड की जाती है. एंड फर्म टेक्स दैट प्राइस. और वो प्राइस कौन ले लेता है? एक सेलर के द्वारा, एक फर्म के द्वारा वो कीमत ले ली जाती है. फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस. एक फर्म अगर सोचे कि मुझे कीमत में परिवर्तन करना है, बट अ फर्म कांट डू दिस. अगर एक फर्म प्राइस में इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा? उस फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पेंसिल जो मैं बना रही हूँ उस पेंसिल की प्राइस को मैं इंक्रीज कर दूं, अगर मैं ऐसा करती हूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बायर्स दूसरे सेलर की पेंसिल को खरीद लेंगे. और अगर मैं ये सोचती हूं कि प्राइस में मैं कमी कर दूं, एनी फॉल इन प्राइस वुड लीड टू लो प्रॉफिट्स. अगर मैं प्राइस को कम करती हूं तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. नेक्स्ट फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. इंडस्ट्री में कोई भी फर्म एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म उसे छोड़कर जा सकती है. A new firm is free to enter the industry and an existing firm is free to leave it. There are
no legal or social barriers on the entry and exit of firms. तो कोई भी फर्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म इंडस्ट्री को छोड़ सकती है. अगर मुझे लॉसेस हो रहे हैं पेंसिल बनाने के में, तो मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ सकती हूँ, पेंसिल बनाने का उत्पादन नहीं कंटिन्यू करूंगी. और अगर पेंसिल बनाने के प्रोडक्शन में बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स पेंसिल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट नॉलेज. Buyers are fully aware of the prevailing price and product in the market. Sellers are also fully aware about the cost, technology and the quantity demanded. Buyers को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके प्राइसेस के बारे में पूरी नॉलेज है. ऐसे ही सेलर्स को कॉस्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और डिमांड के बारे में पूरी नॉलेज है. तो मार्केट में परफेक्ट नॉलेज पाई जाती है. परफेक्ट मोबिलिटी. Factors of production are perfectly mobile. They can enter, leave or switch the job. No geographical or occupational restrictions on their movement. ऐसा नहीं होता कि रॉ मटेरियल किसी एक फर्म को मिल रहा है, दूसरी फर्म को नहीं मिल रहा. और जो लेबर है वो किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकता है, किसी भी फर्म में काम कर सकता है और किसी भी फर्म को छोड़ सकता है. बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता. फर्म का एक ही गोल होता है, फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स. फर्म जो है वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. Buyers and sellers incur no cost in making exchanges. Transportation cost zero होती है. No selling cost. A firm does not spend on advertisements as product is homogeneous. पे कोई भी खर्च नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक जैसे हैं. अगर एक फर्म एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च करती है तो इसका अमाउंट वेस्ट होगा क्योंकि प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है. बायर्स को मार्केट में जाकर पता ही नहीं चलेगा कौन से सेलर की वो प्रोडक्ट है. डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन. प्योर कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, homogeneous product, freedom of entry and exit of firms, one price and lack of transport cost. और perfect competition की क्या features हैं? Large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, one price, lack of transportation cost. ये देखो, ये वाले फीचर्स यहां तक सेम हैं प्योर कंपटीशन में एंड परफेक्ट कंपटीशन में. परफेक्ट कंपटीशन की लास्ट टू फीचर्स परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी. ये दोनों फीचर्स जो हैं परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, ये दोनों फीचर्स प्योर कंपटीशन में नहीं होती हैं. ये परफेक्ट कंपटीशन में पाई जाती हैं. Now, determination of price under perfect competition. Under perfect competition, price of a commodity is not determined by any individual seller or a firm. Perfect competition में एक वस्तु की कीमत एक फर्म के द्वारा निर्धारित नहीं होती. It is determined by industry. प्राइस कौन निर्धारित करता है? इंडस्ट्री के द्वारा निर्धारित की जाती है. इंडस्ट्री किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ फर्म्स
is called industry. जैसे क्लास के एक स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ फर्म्स को क्या कहते हैं हम? इंडस्ट्री. Equilibrium price of a commodity is determined at that point where the market demand for the product is equal to its market supply. इंडस्ट्री उस वस्तु की कीमत कहाँ पे निर्धारित करती है? उस वस्तु की कीमत उस पॉइंट पर निर्धारित की जाती है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं. टेबल में आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में प्राइस, देन मार्केट सप्लाई, देन मार्केट डिमांड. आपको मालूम है कि प्राइस और मार्केट सप्लाई का रिलेशनशिप, जैसे जैसे इस टेबल में प्राइसेस कम हो रही हैं तो मार्केट सप्लाई भी कम हो रही है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और डिमांड को देखो, प्राइस और डिमांड के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. प्राइस कम हो रही है तो डिमांड को क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ती जा रही है. डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया, डी डी डिमांड कर्व है ये, और एस एस सप्लाई कर्व है. दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर इकोनॉमी में सिस्टम इस पॉइंट पर है तो हेयर सप्लाई इज मोर, तो क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगी. अगर इकोनॉमी में इस पॉइंट पर है तो हेयर डिमांड इज मोर, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी और अल्टीमेटली प्राइसेस ई पॉइंट पर ही इकोनॉमी में आ जाएंगी. दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. एंड दिस इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कौन लेगा? दैट इज टेकन बाय द फर्म्स. फर्म्स जो है ये प्राइसेस को ले लेंगी. अब ये जो प्राइसेस हैं ये कौन ले लेगा? दीज प्राइसेस आर टेकन बाय फर्म्स. सेम डायग्राम है. दिस इज अ डिमांड कर्व, दिस इज अ सप्लाई कर्व, दिस इज अ P is the price, ये क्वांटिटी है आपकी, और these price is taken by the firm. तो ये जो कर्व है ये फर्म का डिमांड कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू भी है और ये मार्जिनल रेवेन्यू भी है. सो गिवन द प्राइस, जब प्राइस दी गई है तो फर्म इज ओनली टू एडजस्ट इट्स आउटपुट. फर्म को क्या करना है? आउटपुट को एडजस्ट करना है. तो आपको क्लियर हो गया कि फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर. तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है प्राइस को निर्धारित नहीं करती, प्राइस को लेती है, और उस प्राइस पे फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस प्रिवेल करती हैं उन पे वो फर्म कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती हैं. सो डिमांड कर्व कैसा है? डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. और जब आपको मालूम है कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता है, और दोनों आपने देखा डायग्राम में बोथ आर इक्वल. Importance of time element in the determination of price under perfect competition. जब कीमत निर्धारित होती है ऐसे में टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. According to Dr. Marshall, shorter the period, greater will be the influence of demand on price. अगर समय कम है तो डिमांड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा प्राइस पे, and longer the period, greater will be the influence of supply in the determination of price. और अगर समय अधिक होगा तो कीमत निर्धारण में पूर्ति का इन्फ्लुएंस अधिक होगा. टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस डिटरमिन होती है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है. शॉर्ट पीरियड में प्राइसेस को सब नॉर्मल प्राइस, और लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस डिटरमिन होती है
उसे नॉर्मल प्राइस कहा जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड किसे कहा जाता है? इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड in which supply of a commodity cannot be increased beyond its existing stock even if demand is more. Very short period price is called market price. Short period किसे कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड वो समय है जिसमें सप्लाई को उसके जो स्टॉक है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मांग अधिक है तब भी स्टॉक को हम नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कैंटीन में जाते हो और 100 समोसे की डिमांड करते हो, तो कैंटीन ऑनर जो है जितने वहां पे समोसे पड़े हैं उससे ज्यादा उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस निर्धारित होती है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस सप्लाई कर्व जो है आपका इनइलास्टिक है, डी डी डिमांड कर्व है, ई इक्विलिब्रियम प्राइस है, ई इक्विलिब्रियम है और उस पे पी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो निर्धारित होगी। अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने पर प्राइस जो है वो P1 हो जाएगी और डिमांड के कम होने पर प्राइस जो है वो कम होकर P2 हो जाएगी। तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड का इन्फ्लुएंस जो है वो अधिक होता है। नाउ शॉर्ट पीरियड किसे कहा जाता है? इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड इन विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड only up to existing production capacity. Short period price is called subnormal price. Short period में भी डिमांड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और इसमें जितनी उस फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी ही हम डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई इस पॉइंट पर इक्वल है, P प्राइस है और Q क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड इन विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। और इस टाइम में जो प्राइस निर्धारित होती है उसे नॉर्मल प्राइस कहा जाता है। तो लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंगली बढ़ाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली कम किया जा सकता है। डायग्राम में आप देख रहे हो डिमांड एंड सप्लाई ई पॉइंट पर इक्वल है, पी प्राइस निर्धारित होती है और क्यू क्वांटिटी निर्धारित होती है। नाउ मार्केट प्राइस वर्सेस नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस किसे कहा जाता है और नॉर्मल प्राइस किसे कहा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मार्केट प्राइस रियल प्राइस है, इट प्रिवेल्स इन द मार्केट। और सेकेंड नॉर्मल प्राइस क्या है? इट नेवर प्रिवेल्स इन द मार्केट, हाइपोथेटिकल प्राइस है। मार्केट प्राइस को शॉर्ट पीरियड प्राइस भी कहा जाता है एज इट प्रिवेल्स इन द शॉर्ट पीरियड। नॉर्मल प्राइस को लॉन्ग पीरियड प्राइस भी कहा जाता है एज इट प्रिवेल्स इन द लॉन्ग रन। मार्केट प्राइस कैन बी मोर और लेस देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर ही होती है। तो मार्केट प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा या कम हो सकती है। तो मार्केट प्राइस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस हो सकते हैं। नॉर्मल प्राइस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होती है, इसलिए नॉर्मल प्राइस पे नॉर्मल प्रॉफिट से होते हैं। मार्केट प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय डिमांड। मार्केट प्राइस पे किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है? कौन सी फोर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है? डिमांड का। नॉर्मल प्राइस is influenced more by supply. नॉर्मल प्राइस पे
सप्लाई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। मार्केट प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय टेम्परेरी इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एट अ टाइम। मार्केट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बीच में टेम्परेरी संतुलन होता है, उसके द्वारा निर्धारित होती है, जबकि नॉर्मल प्राइस is the result of long run equilibrium between demand and supply. Market price will go on fluctuating around the normal price. Market price जो है वो normal price के around जो है वो fluctuate करती हैं. This you will see in next diagram. Normal price जो है वो क्या रहती हैं? Stable रहती हैं. Market price is for a particular time and normal price is for a period of time. अब आप डायग्राम में इसमें मैंने आपको दिखाया है कि नॉर्मल प्राइस जो है ये आपकी स्टेबल रह रही हैं और मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं नॉर्मल प्राइस के अराउंड. नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. A firm is in equilibrium when it doesn't want to change its output, satisfied with its existing level of output. Whatever amount a firm is producing, continue to produce. एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब जो उत्पादन वो कर रही है उसमें वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहती. It doesn't want to change its output. Equilibrium of a firm हम दो तरह से इसको देखेंगे. Short run equilibrium of a firm and long run equilibrium of a firm. Short run equilibrium of the firm, इसकी दो approaches हैं. Number one approach है आपके पास में total revenue and total cost approach, and second approach है marginal revenue and marginal cost approach. Today we will do total revenue and total cost approach. Total revenue and total cost approach. इस approach के accordingly a firm is in equilibrium when it earns maximum profits. Firm उस समय संतुलन में होगी जब वो सबसे अधिक profits कमाएगी. तो प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. फर्म के इक्विलिब्रियम को हम टोटल अप्रोच के द्वारा देखेंगे. टू एक्सिस हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस हमने ड्रॉ की हैं. ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को हमने मेजर किया है. टोटल रेवेन्यू कर्व 45 डिग्री लाइन कर्व है जो इंडिकेट करता है कि फर्म को अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो उसे ज़्यादा क्वांटिटी को बेचना होगा. टीसी टोटल कॉस्ट कर्व है जो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे फर्म्स अधिक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगी तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी. अब हम टोटल प्रॉफिट कर्व को ड्रॉ करेंगे. टोटल प्रॉफिट कर्व टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे. ए पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, इसलिए प्रॉफिट्स कितने होंगे? 0 होंगे और इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं. ऐसे ही सी पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, सी पॉइंट भी ब्रेक इवन पॉइंट है. सी पॉइंट पर प्रॉफिट्स कितने होंगे? 0 होंगे. तो जब हम प्रॉफिट कर्व हमने ड्रॉ किया, बी पॉइंट और डी पॉइंट पर प्रॉफिट्स कितने होंगे? 0 होंगे. फर्म जो है वो ए और सी के बीच में जो है प्रोडक्शन करेगी. ए और सी के बीच में प्रोडक्शन जो है फर्म के द्वारा किया जाएगा. अगर फर्म इस एरिया में
और इस एरिया में फर्म जो है वो प्रोडक्शन नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। ऐसे ही यहाँ पर रेवेन्यू कम है, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं। तो ये जो टोटल प्रॉफिट कर्व हमने निकाला, इन दोनों की टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस से हमने कैलकुलेट किया और इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन ले और यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा है और इसलिए इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होगा, ओ क्यू होगा। तो फर्म जो है ए और सी के बीच में जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वहां उसके प्रॉफिट्स पॉजिटिव हैं और जहां पे प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे फर्म उस पॉइंट पर जो है उत्पादन करेगी एंड दैट पॉइंट इज क्यू पॉइंट। अब फर्म को जो है लॉसेस भी हो सकते हैं। तो फर्म को लॉसेस कब होंगे, जब फर्म का जो रेवेन्यू है वो कम है और कॉस्ट जो है फर्म की अधिक है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व आपने देखा। अब क्या है आपके पास में, ये जो गैप है ये जो है ये लॉसेस हैं और ये क्यू पॉइंट पर जो है लॉसेस जो है वो मिनिमम होंगे। यहाँ पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर से अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी टच करती है, इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू इतना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है और प्रोड्यूसर को फिक्स्ड कॉस्ट का जो है वो लॉसेस हो रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि फर्म को अगर लॉसेस हो रहे हैं तो फर्म को कंटिन्यू करना चाहिए या फर्म को अपनी यूनिट को बंद करना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स, ओ का मतलब है कि अगर वो ऑपरेट करता है और टोटल प्रॉफिट्स, एस का मतलब है अगर वो यूनिट को बंद कर देता है। तो टोटल प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर वो ऑपरेट करता है तो प्रॉफिट्स जो हैं दैट शुड बी मोर देन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अगर वो शट डाउन करता है। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही हमने इस साइड किया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करता, अगर वो यूनिट को शट कर देता है, अगर वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू जीरो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, तो उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करना होगा। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाती है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट शुड बी मोर देन जीरो। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है तो फर्म को प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए और उस पॉइंट पर जहां पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द शट डाउन पॉइंट। These are the frequently asked questions. Thank you.